हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईसी बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पॉपुलेशन ओवर ग्रेटेस्ट रिसोर्स करेंगे यानी जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, अगर उनके सिलेबस में जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन है तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इवन की जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईसी सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनआईसी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। Our next topic is important population policy in India. Do you know that discussion on the population growth and their need to be adopt a population policy had begun in India even before independence. A sub-committees of population was set up by the national planning committees and appointed in the 1938 by the internal government. This committee in their resolution in the 1940 and said in the interest of social, economical and family happiness and national planning, family planning and our limitation of children are essential. That is important. In 1952, India was the first country in the world to launch a national population program emphasizing to family planning. The aim of the programs was to reduce the birth rate, to be stabilize the population at the level of consistent with their requirement of national economics. Then India has been reformatting in the population policy from time to time, the details of which you can get from relevant books or even you study the higher classes. At present, we shall try to understand their latest population policy, which was adopted by the government of India in 2000. National Population Policy mean NPP 2000. There is the most important policy here. The National Population Policy 2000 has made a quantitative depth chart in its approach to be population issue. It does not be directly lay up emphasis on population control. It is a state that the object of economics and social development in the improvement the quality of lives their people lead. To enhance there is the well begins and to be provide their opportunities and chosen to be become a productivity assist. The resources in the society and socialized population is on the stimuli requirement of promoting sustainable development. The immediate is objective of the NPP 2000 is to address the unmet need for the contraception and health and infrastructure and healthy personnel, and to provide the integrated service is a deliver for the basic reproductive and child health care. This is important child health care. The medium terms objective to be bearing to the total fertility rate is means TFR. There is a most important total fertility rate. To the replacement level of 2010, there is a vigorous is implementation of intersectoral operational stage. The long-term objective to be achieved a stable population by 2045 with a stable economic growth.
and social development and environment protection here. And meaning of here, total fertility rate or replacement level. It is a total fertility rate at which the newborn girl and would we have to average and exclusively one daughter when there is a lifetime. In a more familiar term, every woman has many babies as are needed to be replaced her and it result into the zero population growth. And second here, stable population. Stable population here, a population where fertility and mortality are constant over a period of time. And this type of population will be shown on unvarying age distribution and will grow at the constant rate. Where fertility and mortality are equal to stable population in a scenario. The next year, women empowerment in India. The empowerment of women is a very crucial for the improving the quality of population as a human resource. Human in India, through the making up almost 50% of total population has been localized down upon their subjected to the discrimination. This is the most important. Almost 50% of the total population has been looked down upon the subjected to be discrimination. By simply logic, this has is deprived to the nations of the contribute of half of its population as a human resources. This is a quality opposite of what is seen there absorbed in the developed world. The role of women in our country has been limited to looking after their families and also began mute spectators to be all kind of discrimination, ill treatment and crime against them. If you throw the Indian in the constitution, you will find that it's article 14, 15, 16, 19, 39, 42, 51E. Provision has been to made to the ensure justice and equality to all. There are justice and equality to all. Many law has been to pass like a Special Marriage Act 1954, Medical Termination of the Pregnancy Act 1971, and Child Marriage Restraint Act of Amendment of 1978. Yet the status of women continued to be a matter of great concern here. And some step has been taken, and it is a hope that there will be a quantitative change in the status of women. The improvement of women receive a major boost. When there are 73 and 74th, there is a constitutional amendment is providing 33% of reservation of the seat of women is a Panchayati Raj institution and annual local bodies were passed by the parliament. There is the most important here, 73rd and 74th constitutional amendment. There is the most important 33% of reservation seat of Panchayati Raj institution and urban local bodies here. Another constitutional amendment bill has been introduced will be aimed to the providing 33% reservation of women in the House of People and State Legislative Assembly. A National Commission of the Women come into existence in 1992, Act of passed in 1990. While the function has been to the assigned to be a commission to look into there is a investigate into any ill treatment, but there is the notice against the women and safeguard their interest. The ultimate object is the facilitate their achievement, development and improvement of women are eliminate all form to discrimination. And this step will be also ensure there is a active participation in all sphere of life and activities here. You can read, learn and understand about their need of women, empowerment and effort the made more in their detail in the lesson, social economic development and improvement of the disadvantaged group. There is the most important coming lesson. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत में जनसंख्या नीतियाँ। देखिए भारत में जनसंख्या नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये भारत के जो है नीतियों के अनुसरण भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नीति अपनाने की जरूरत पर भी जो है विचार विमर्श स्वतंत्रता से पहले से ही शुरू हो गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही जनसंख्या नीतियों के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्कस हुआ था। अंतिम सरकार द्वारा 1938 में एक राष्ट्रीय योजना सम्मिलित स्थापित की गई जिसने जनसंख्या पर एक उप समिति जो है बनाई
और इस समिति ने 1910 में अपने संकल्प में कहा कि सामाजिक जो है अर्थव्यवस्था परिवार की खुशी और राष्ट्रीय योजना के हित में परिवार नियोजन और बच्चों की सीमा आवश्यक है। तो इस बात की पहले ही चिंता कर दी गई थी 1910 में ही, और 1910 में ये बात पूरी तौर से कहा गया कि खुशी और राष्ट्रीय योजना के हित में परिवार नियोजन और बच्चों की सीमा आवश्यक है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जो राष्ट्रीय जन्म जनसंख्या परियोजना पर बल देते हुए कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। यानी 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को कम कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और आवश्यकता स्तर पर जो है जनसंख्या स्तर को स्थिर करना था। यानी इसका उद्देश्य जो था जनसंख्या को स्थिर करना था। भारत जब से समय समय पर जनसंख्या नीतियों में सुधार करता रहा है, जिसके विस्तार से जानकारी संगत किताबों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे बहुत से किताब हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। आप उच्च कक्षा में भी इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। वर्तमान में हम नवीनतम जनसंख्या नीतियों को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत सरकार द्वारा 2000 में अपनाया गया था। चलिए देखते हैं 2000 में कौन सी नीतियों का अनुसरण किया गया था। यदि बात हम करें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण में गुणवत्ता परिवर्तन को दर्शाता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय योजना यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो अपनाई गई थी, ये गुणवत्ता को दर्शाता है और यह सीधे जनसंख्या नियंत्रण पर जोर नहीं देता है। यानी सीधे तौर पर जो जनसंख्या का नियंत्रण इस पर स्थापित नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार करना है। देखिए, जब तक लोगों के जीवन में सुधार नहीं किया जाएगा, जनसंख्या नीति को जो है अनुसरण करना संभव नहीं है। जब तक लोग पढ़े लिखे समझदार नहीं बनेंगे, तब तक जो है जनसंख्या को कंट्रोल करना संभव ही नहीं है। आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणवत्ता सुधार करना है, तभी तो आर्थिक और सामाजिक विकास के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया और उनके कल्याण में वृद्धि भी करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। और समाज में लोगों का जो है सु अवसर विकल्प प्रदान कर उन्हें उत्पादनकारी जो परिसंपत्ति के रूप में विकसित करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। जनसंख्या स्थिर करना सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य आवश्यक था और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तत्कालीन उद्देश्य, जिसके अंतर्गत गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य कार्यक्रम का अपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार गर्भ निरोधक स्वास्थ्य के देखभाल और सभी चीज़ों पर जो है बहुत ही जोर दिया गया और इसके साथ ही साथ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कृत सेवाएं प्रदान भी किया गया। मध्यकालीन उद्देश्य कुल जो है जन्म दर को 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना था। यानी देखा जाए तो मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को जो है 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना था। उद्देश्य महत्वपूर्ण थी लेकिन वो हो नहीं सका, जिसके लिए अंतर क्षेत्रीय संचलन राजनीतियों की जोरदार कार्यवंत नीतियाँ थी। कहते हैं अगर देखा जाए तो 2045 तक इस कार्यक्रम को जो है पाने का पुरजोर कोशिश करने में अग्रसर है और रखा गया था लक्ष्य कि देखा जाए तो 2045 तक जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो लक्ष्य रखा गया है उस पर दूर दूर तक जो है कुछ भी हासिल किया हुआ नज़र नहीं आता है। अगर आगे हम बात करें प्रतिस्थापन सतह पर कुल प्रजनन क्षमता दर को, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यह कुल प्रजनन दर है जिसमें एक नवजात बच्चे अपने जीवन काल में औसतन एक बेटी को जन्म देती है। यानी प्रतिस्थापन स्तर पर कुल जनन क्षमता दर, यानी देखा जाए तो प्रजनन दर जिसमें एक नवजात बच्ची अपने जीवन काल में औसतन एक बेटी को जन्म देती है और अधिक जो है परिचित शब्दों में हर औरत उतने ही बच्चों को जन्म देती है जिसे वह प्रतिस्थापित हो रही है। यानी जनरल सी बात है, हम दो हैं तो हमारे दो हैं। यानी आप अपने दो के जगह पर दो प्रतिस्थापित करके जा रहे हो। यानी जनसंख्या इससे क्या होगा, कंट्रोल होगा, बराबर हो जाएगा कि हम दो हमारे दो, कहानी ख़त्म। आगे ग्रोथ, फिर हम दो हमारे दो, तो ये कंडीशन चलता ही रहेगा। लेकिन आज के समय में ये सिचुएशन उल्टा है, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापित का दर आज नहीं है और बहुत ही गलत है। इसका परिणाम शून्य जनसंख्या वृद्धि होती है
अगर प्रतिस्थापन दर को अगर हम माने और इसी को स्थापित करें तो जनरल सी बात है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार की जनसंख्या उम्र के आधार पर वितरण एक सा ही होता है। जहाँ सामान्य दर से जनसंख्या वृद्धि होती है, जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर एक सा ही होता है और जनसंख्या स्थिर रहती है, और एक स्थिर दर बढ़ती है। जहाँ प्रजनन और मृत्यु दर बराबर है, जनसंख्या स्थिर रहती है। तो इसे प्रतिस्थापन स्तर पर कुल प्रजनन क्षमता कहती हैं कि हम दो हमारे दो। मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं होगा, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होना संभव नहीं है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग महिलाओं का है, और फिर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें निम्न समझा जाता है। सरल तर्क के अनुसार यह मानव संसाधन के रूप में अपनी आबादी के आधे के योगदान को राष्ट्र से वंचित किया हुआ है। यानी इनका राष्ट्र के प्रति बहुत ही कम जो है योगदान होता है। जो भी विकसित विश्व में देखा गया है, अनुभव किया जाता है कि उसके विरुद्ध हैं। हमारे देश में महिलाओं की भूमिका खाना पकाने से परिवार की देखभाल करने के लिए सीमित ही कर दिया गया है। आज के समय देखा जाए तो समाज उनके प्रति हर प्रकार के भेदभाव, दुर्व्यवहार और अपराध के लिए मूल दर्शक बन के रह गए हैं। यदि जो भी महिलाओं के साथ बुरा होता है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है सरकार है और हमारा समाज है। कहते हैं रूल रेगुलेशन बनते हैं तो सिर्फ कागजों में ही बनते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत से महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, फिर भी उनके साथ गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रूल रेगुलेशन जो है सख्त नहीं है। अगर आप देखिएगा किसी क्षेत्र में अगर बलात्कार हो रही है और वहाँ पर कानून में फांसी भी उसको दे दिया, फिर देखिए अगले क्षेत्र में वही काम हो रहा है। क्योंकि अपराध जो है डरे हुए नहीं है, सरकार अपराधों को पनाह देती है। कोई भी अपराधी होगा, कोई ना कोई मंत्री लोगों का ठेकेदार निकल जाता है और कैसे भी वो बच निकलती हैं। भारत में सख्त कानून होगा तब जो है बड़े से लेकर छोटे व्यक्ति तक वैसे ही डरेंगे, लेकिन ऐसा प्रावधान ही नहीं है। तो मैं तो दोषी दो ही व्यक्ति को दूंगा, एक समाज को और एक सरकार को। सरकार ढीला रवैया अपनाता है इन चीज़ों औरतों के प्रति, और हमारा समाज भी जो है ढीला रवैया अपना रहा है, जिनके कारण अपराध दिन प्रतिदिन औरतों के प्रति जो है बढ़ता ही जा रहा है। और कई घटना ने हमें सबक भी दिया है, लेकिन हम उससे कुछ भी नहीं सीखे हैं। सरकार ने रूल रेगुलेशन बेशकली बदल दिया है, लेकिन इससे कोई प्रभाव समाज में देखने को नहीं मिला है। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय सरकार द्वारा संविधान में कई अनुच्छेद बनाए गए हैं इसके लिए, जैसे 14, 15, 16, 19, 39, 42, 51 में को पढ़े तो पता चलेगा कि सभी के लिए न्याय और समानता का सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। यानी अगर आप इन सारे आर्टिकल को पढ़ोगे तो सब में जो है न्याय और समानता का सूचनाएं प्रावधान किया गया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको एक सामान्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कई तरह के कानून पारित किए गए हैं, जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, गर्भ अवस्था के चिकित्सालय समापन अधिनियम 1971, और जो है 1978 की बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। तो कहते हैं बहुत से प्रावधान बनाए गए हैं स्त्रियों के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। कहते हैं रूल रेगुलेशन सिर्फ कागजी किताबों में बनते हैं, हकीकत ज़िंदगी में नहीं बनता है। आप एक बात ही लीजिए, औरतों के प्रति दहेज की प्रथा के रिगार्डिंग कितने जो है गलत औरतों के साथ होती है। और आपको बता दूं कि हमारे संविधान ने दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध घोषित किया हुआ है। लेकिन आप सोचिए किस क्षेत्र में दहेज नहीं दिया जा रहा है, किस क्षेत्र में नहीं लिया जा रहा है। आज तो विडंबना ही बदल चुका है। कहते हैं अगर लड़के अच्छे हैं तो लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं, लड़की वाले नहीं मांग रहे तो लड़के वाले मांग रहे हैं। विडंबना ही बदलता जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है? कहते हैं इसी कारणों से तो जो हमारा समाज बिगड़ गया है। जर्नल सी बात है कि दहेज किस लिए? पुराने समय में माता पिता जो होते थे अपनी बेटी को घर बसाने के लिए अपनी मर्जी से कुछ सामान का प्रावधान करते थे, चलिए वो खुशी से देते थे। लेकिन आज के समय में चाकू गोली भिड़ा के उनसे दहेज वसूली जाती है। तो सोचिए, विचार कीजिए, हमारा समाज कहाँ पर आकर ठहर गया है। और ये बहुत चिंता का विषय है
आने वाला समय के लिए। इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं और ये आशा की जाती है कि महिलाओं की स्थिति में गुणवत्ता परिवर्तन होगा, सिर्फ होगा। यही बात हम लोग भी आशा ले बैठे पड़े हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रमुख बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की तरफ से जो है 73वें और 74वें में संविधान संशोधन पंचायती संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण किया गया है। यानी 73 या 74 आर्टिकल में आप देखिएगा, जो कि पंचायती राज के अंतर्गत आता है, इसमें 33% जो है आरक्षण संसद द्वारा पारित किया गया कि महिलाओं को 33% जो है आरक्षित दिया जाएगा। यानी किसी भी महिलाओं को जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करने की बखूबी पूरी ही सब प्रावधान है। एक और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसके उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी हर क्षेत्र में महिलाओं को 33% का दर्जा दिया गया है। अब सोचिए, संविधान ही जब 33% दे रहा है तो ये 50% कब होगा? मैं तो कहता हूँ आरक्षण की जगह पर महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और महिलाओं की भी भागीदारी उतनी होनी चाहिए जितने भागीदारी पुरुषों की होती है। तो आप आरक्षण करके क्या दिखाना चाहती हो कि औरतें कमज़ोर हैं, औरतें आने की क्षमता नहीं रखती है? ये गलत है। औरतों को एक मौका को देख के तो देखिए, आपका 33 की जगह ना वो 65% अपना अधिकार हासिल कर लेगी। लेकिन आपने तो पहले ही औरतों को कमज़ोर बना दिया आर्टिकलों में। 33% आरक्षण किस बात के लिए? अरे उनको पहले मौका तो दीजिए। ये 33% आप अपने लिए आरक्षित रखिए। स्त्रियों के देखिए खुद अपने बलबूते पे वो जो है 65% हासिल कर सकती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग 1990 में पारित अधिनियम के माध्यम से 1992 में अस्तित्व में आया था। आयोग को यह व्यापक आवंटित किया गया और इसमें महिलाओं के हितों की जो है सुरक्षा हेतु उनके साथ होने वाली दुर्व्यवहार की जानकारी की जांच पड़ताल करना भी शामिल है। कहते हैं अगर औरतों के प्रति दुर्व्यवहार होता है तो उस कानून का भी जो है दो रवैया होती है। कभी भी कहते हैं ना, जब तक रूल रेगुलेशन से सख्त नहीं बनेंगे, महिलाओं का दुर्व्यवहार की जो सिस्टम चलती आ रही है वो प्रथा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसका परम उद्देश्य उन्नति, विकास और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना है। और यह कदम उनके जीवन और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगा। महिला सशक्तिकरण की जरूरतें और प्रयासों के बारे में हम आगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगले पाठ में हम सशक्तिकरण के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने जनसंख्या वृद्धि के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया और हर एक महत्वपूर्ण पहलू को जानने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि इसी से आप हेल्प कर सकती हो। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि त्रिपान सेंटर आपको पता ही है कि 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सभी वीडियो उपलब्ध है। चाहे वो मेडिकल में पढ़ रहे हो, चाहे आर्ट्स में पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, सबका वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। सिर्फ थोड़ा सा कोशिश करने की आवश्यकता है और इसके लिए प्लेलिस्ट में जाने की आवश्यकता है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जो रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।